दिल्ली में 8वें एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का शुभारंभ। एपेक्स इंडिया फाउंडेशन ने विभिन्न क्षेत्रों की कई जानी मानी हस्तियों और कई बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में 8वें एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2023 का शुभारंभ किया। मई में नई दिल्ली के शांग्री ला एरोस होटल में 8वें एपेक्स एक्सीलेंस अवार्ड और 8वें एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस कॉन्फ्रेंस ऑन QHSE का उद्घाटन किया गया। एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड की शुरुआत कॉरपोरेट सेक्टर में मानव संसाधन, पर्यावरण, CSR, सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को मान्यता देने के लिए की गई है। पुरस्कार 5 श्रेणियों में दिए जा रहे हैं: सुरक्षा एक्सीलेंस, CSR एक्सीलेंस, गुणवत्ता एक्सीलेंस, मानव संसाधन एक्सीलेंस और पर्यावरण। एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिल्ली में आयोजित शानदार कार्यक्रम की शुरुआत फाउंडेशन के अध्यक्ष कुलदीप सिंह द्वारा इंट्रोडक्टरी स्पीच से हुई। उन्होंने पहल के पीछे के विजन और पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक सुरक्षा और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व के बारे में बात की। See, there are a lot of categories. Before that, I would love to tell you that the environment protection is very, very important today. As you can see, the climate change, the landsliding, there are a lot of climate change happening around the world. So this is a time to wake up, and it's not about the single organization and the individual people responsibility. It is a responsibility for each and everyone, whether it's a common people or from the organization or from the politician, everything. So this is just a wake-up call. And there are a lot of categories like safety, industrial safety. We do organize award in occupational health and safety, environment protection, environment excellence basically, and CSR, corporate social responsibility, and human resource management, quality excellence. There are a lot of categories. See, the selection process is very simple. We do invite the nomination from the corporates, so we send the application form there. So we do have our advisory board and the jury members from the retired people retired from the ministry and PSUs. So they just judge and evaluate the process, and then we disclose the award according to their performance and what they have done innovation in terms of like environment management, industrial safety, what they have brought the new practices in this field. This is very important. Yes, I would love to take the name like NTPC, ONGC Limited, and Reliance, and Tata is also there. There are a lot of organizations like Shapoorji Pallonji is there, Godrej is there. So there are a lot of organizations. You can take the top 10 organizations, they are with us. See, basically as an Apex India Foundation, our job is to provide the platform. So this is a common platform where people can come from the corporate, can exchange their ideas, ideas and the experiences, what they are doing in their corporates. So how we can reduce the temperature and all. So it's like a revolving things. It's not a single point. So we are doing we are just providing the best information for the people, for the organization, so that we can be aware about it and we can just take the precautions to stop the harming of the environment. एपेक्स इंडिया फाउंडेशन की कार्यक्रम निदेशक सोनाली सिंह ने प्रतिष्ठित एपेक्स इंडिया टीम द्वारा आयोजित एक आकर्षक कार्यक्रम के शानदार इम्प्लीमेंटेशन का नेतृत्व किया। सिंह ने कहा, हमें इस वर्ष अपने सम्मेलनों और प्रशिक्षण को जारी रखने की खुशी है, क्योंकि हम उन उल्लेखनीय हस्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने उद्योगों में एक स्थायी प्रभाव डाला है। प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मेलनों सहित हमारी पहलों के माध्यम से हमारा उद्देश्य समाज पर पॉजिटिव प्रभाव डालने वाले एक्सीलेंस योगदानों को पहचानना और उनका जश्न मनाना है। जो हम एपेक्स इंडिया फाउंडेशन का अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए। इंडिया में जहाँ एक तरफ भोपाल डिज़ास्टर हुआ, वहीं दूसरी तरफ हमें इन सब चीज़ों को दोबारा न हो, उसके लिए रोकथाम करना है, और उसके लिए हमको वर्कर्स, मैनेजर्स, इंडस्ट्रियल लीडर्स सभी को मिलके साथ काम करना है, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में दुर्घटना ना हो। जो ये अवार्ड्स हैं, ये एक मोटिवेशनल प्रोसेस है जिसको हमें
आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। इस साल डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर ऊपर जाएगा, उसका क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऊपर जाएगा, मगर हमको अपने वर्कफोर्स को तैयार करना है क्योंकि वो दिन में बाहर रहते हैं और डेफिनेटली 45 प्लस टेम्परेचर पे रहेंगे। उससे क्या क्या हीट स्ट्रेस से बचाव करने हैं और उनको इक्विप करना पड़ेगा, नहीं तो डिज़ास्टरस रिजल्ट्स आएंगे और हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस कार्यक्रम को भाजपा सांसद और प्रसिद्ध अभिनेता और गायक मनोज तिवारी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने सराहा। उन्होंने पर्यावरण और औद्योगिक सुरक्षा के लिए एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों के लिए अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की और प्रतिनिधियों और एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के विजेताओं को अपनी हार्दिक पुरस्कार समारोह में मेजर जनरल पी.के. सहगल, भारत के रक्षा विशेषज्ञ और टेड-एक्स वक्ता डॉक्टर अवनीश सिंह महानिदेशक और डॉक्टर एस.के. त्यागी, सीपीसीबी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अजय दीक्षित कार्यकारी निदेशक, मुख्य एचएससी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड और विजय शेखर शर्मा, संस्थापक, सीईओ और एमडी पेटीएम अन्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, अडानी सीमेंट लिमिटेड, प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड सहित कई प्रमुख निगम भी शामिल हुए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, डालमिया सीमेंट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कमलेश्वर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, अडानी मुरमगांव पोर्ट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड गोवा और एनटीपीसी लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन को एनवायरनमेंट एक्सीलेंस के लिए एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2023 में डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शाम की शुरुआत एक आकर्षक समारोह के साथ हुई जिसमें आज की दुनिया में सुरक्षा और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, क्वालिटी एक्सीलेंस, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के महत्व पर प्रेरक भाषण और व्यवहारिक चर्चाएं शामिल थीं। सरकारी अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों और पर्यावरण अधिवक्ताओं सहित कई प्रतिष्ठित अतिथियों ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सामूहिक कार्रवाई के महत्व को रेखांकित किया। 1 मिनट न्यूज़। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।